Hello viewers, I am Deepthi. Today you have given ICSE Class 10 English Literature paper for the year 2026 and I hope you all have excelled it because the paper was set in a very easy way. I cannot say easy. It is covering MCQ in a little bit difficult way, but otherwise the paper is average. So now, starting with section A, question 1. What were Julius Caesar's dying word? तो इस क्वेश्चन को देख के तो आपको लगा होगा अरे वाह पेपर में मजा ही आ गया. So Caesar now be still and you know et tu brute. Then false Caesar, ये पता ही है, आप सबको पता है कि ये वर्ड फेमस वर्ड्स हैं. कभी भी हमें जिसने भी जूलियस सीजर पढ़ी है उसके मुंह पे ये वर्ड्स होते ही हैं. Now, which of the following phrases best describe Antony's mood when he say, "O mighty Caesar, dost thou lie so low? Are all thy conquest glories?" ये आपको पता ही है. तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ स्टार्टिंग की 3 लाइन ही दी. अगर पूरा पैराग्राफ में लास्ट के वर्ड्स लिए होते तो रिमोर्स और रिग्रेट भी सेम पैराग्राफ में है. बट अकॉर्डिंग टू दीज 3 लाइन आई विल गो विथ बी ऑप्शन. ग्रीफ एंड सॉरो इज द बेस्ट ऑप्शन सुटेड. Which of the following does Antony not say about Caesar in his funeral speech? तो Caesar was ambitious and wanted to be crowned king. तो कभी उसको उसने बोली ही नहीं ये वाली बात. तो Caesar ambitious Antony की नेचर में तो कभी था ही नहीं, उसके अकॉर्डिंगली तो कभी है ही नहीं है. Caesar had compassion for poor, ये सब उसने बोला है, बट A not say में है, तो इसलिए A option is correct. Now coming to 4, Antony says These many then shall die, their names are pricked. ये तब की बात है जब वो लिस्ट बना रहे हैं जिन जिनको उन्होंने बदला लेना है, रिवेंज लेना है. These words reveal that he is इस समय ruthless. तो A option is correct in this. During their quarrel, Brutus say to Cassius, "Away, slight man, दूर हो जाओ." Brutus' tone in the above line can be best described as, इससे पहले कैसियस उसको बोला है कि नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा, तो इस उसके उसमें आंसर दिया उसने ब्रूटस ने, तो ये है कि अवे स्लाइट मैन, यानी कि पीछे हो जाओ मुझसे. तो डिसमिसिव टोन इसमें करेक्ट आएगा. फिफ्थ में डी ऑप्शन इज करेक्ट. Toward the end of the play, Pindarus reports that Titanius had been captured by enemy troops. What does Cassius do on hearing the news? मतलब कैसियस ने क्या एक्शन लिया था? He persuade Pindarus to help him take his life. C option is correct in this, क्योंकि इसी की मतलब जो फेक न्यूज है या यूं कहो कि उसने उसको मिस इंटरप्रेट किया सिचुएशन को, तो वही इसका रीजन रहा. What did Martin dislike about the elevator in his apparent building? Unpleasant है but smell नहीं आया. Dirty floor नहीं है, dirty walls हैं. तो its small size is correct. Option number C is correct in 7th part. Now 8. Choose the option that lists the sequence of events that Stephen Lecoq's short story with the photographer in the correct order. तो correct सबसे पहले 4th है. The author wanted to have his photograph taken. So 4th से start होने वाला यहाँ only B option is there. So second, at the studio, photographer's criticism of his face made the author feel worthless and unattractive. And then 2 के बाद 3, disturbed and upset. And then 1, even as he was protesting, the photographer managed to take a candid photograph. Now 8. Nana has many voices. There is a special one she uses to shut everyone up. तो यहाँ पर she is a loud, rude woman. क्या मतलब इसमें टेल कर रहा है आपको? She is strong, powerful. She dominates the household. D option is correct in 9th part. Now in 10th, what were the people in the Meads neighborhood doing when he was out walking at night? तो watching television, ये तो आपको चैप्टर में पता ही है, इसके बहुत सारे दी गए indications. In Alphonse Daudet short story, The Last Lesson, Franz says that all our bad news had come from there. So what does there refer to? So there is bulletin board. Option number B is correct. Which of the following options contains a figure of speech that appears in the following lines? तो spirit walled around this world of sense floats like an atmosphere. तो like लगा है, it means it is a simile. तो आपको इनमें से ढूंढना था कि कौन सी another statement है जिसमें simile है. तो she sways like a flower in the wind of our song. Option number D is correct. In 13, the mood in the poem when great fall moves from. तो obviously starting में तो fear है या डिस्ट्रेस है, तो फियर टू लास्ट में जाके होपफुल की तरफ जा रहा है, तो फियर टू होप. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. इन 14th, इन द पोएम द ग्लोब इन द लॉयन किंग फ्रैंकिस एक्सक्लेम्स राइटली डन, कि तुमने ठीक किया है. तो व्हाट एक्शन ऑफ काउंट डे लॉर्ड्स डज ही अपलॉडेड व्हेन ही सेज दिस? Leaping into the pit full of angry lions, यहाँ पर flinging the glove angrily in the lady's face. Option number C is correct. In 15, select the option that shows the correct relationship between 1 and 2 statement. So first is the mite on the paper ran, crabbed, faltered, hesitated and cowered.
2 is the poet narrator realized that it was an intelligent living creature. So statement 1 is the reason for statement 2. Sukumar Ray's poem The Power of Music can be classified as nonsense words. ये लाइन हमने देखी भी है जहां हम about the author पढ़ते हैं, about the poet पढ़ते हैं. Now section B आपको पता है Julius Caesar, all the topics, even questions and scene according to my predicted Julius Caesar video. Act 3 scene 1 कुछ का कहना था, कुछ स्टूडेंट्स का भी, टीचर्स का भी कि Act 3 scene 1 2 आ गया लास्ट ईयर, तो इस बार Act 3 नहीं आ सकता है. बट मैंने अपनी प्रेडिक्टेड वीडियो में क्वेश्चन यही बोला है. थर्ड पार्ट आप उसमें लाइन सुन लो, सेम ये है जहां पर एंटनी हैंडशेक कर रहा है, मतलब अपनी बातें कर रहा है उनके साथ, तो ये आ जाएगा. एंटनी पार्डन मी जूलियस, तो ये आ गया. व्हाई डज एंटनी से पार्डन मी जूलियस, तो आपको पता है. क्वेश्चन तो सारे बिल्कुल सिंपल वे में दिए गए. थोड़ा सा यहाँ एक वर्ड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रेव हार्ट आ रहा है, जबकि आपको पता है ओरिजिनली HART वर्ड है, वो सिर्फ एक स्पेलिंग मतलब मिस स्पेल्ड वहां पर वर्ड आया और कुछ नहीं है. और बाकी देखो 4 मार्क के लिए कितने अच्छे से पेपर सेट किया गया है कि 4 मार्क के लिए 4 अलग अलग लाइंस है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल पाए, और सारे इतने इजीली पूछे गए हैं. व्हाट रिक्वेस्ट डिड एंटनी मेक टू ब्रूटस लिटिल लेटर इन द सीन, कि हाँ मुझे उसके फ्यूनरल स्पीच में बोलना है. Who wants Brutus against granting this request, तो कैसे से उसको रोकता है. तो बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं. Now next from Julius Caesar Act 5 Scene 3, ये भी मैंने अपनी प्रेडिक्टेड वीडियो में बोला है. ये तो मैंने क्वेश्चन के साथ भी यही बोला, जो मैंने 2 प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बोले उनमें से ये मैंने आंसर भी बोला है इसका कि yet 2 Romans, तो किन 2 रोमन्स के लिए, लास्ट 2 रोमन्स, ये वर्ड ब्रूटस के अकॉर्डिंगली किन 2 के लिए यूज हुआ है, तो कैसियस और टिटेनियस. तो इसमें यही आपने इसी को एक्सप्लेन करना है, मतलब वही वाला पैराग्राफ ही सेम वही आया, क्वेश्चन भी वही है. बाकी बीच में तो आपको पता ही है जब वो पूछेंगे क्वेश्चन तो उसमें उनका मेन मोटिव क्या होता है कि बच्चे की पूरी नॉलेज बाहर निकल के आ जाए. कि टर्म फ्यूनरल खुद कर दो, वेयर विल हिज फ्यूनरल्स बी हेल्ड, कहाँ होने थे, कहाँ उसने बोलते थे कि थैसोस में ले जाते हैं क्योंकि वो उनको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता था आपने, तो वो वाले आंसर्स आपने इनके देने हैं. सेक्शन सी में भी आपको पोएट्री प्रॉस भी सेम जो मैंने प्रेडिक्टेड वीडियो में बोला था वही आए हैं. जब आते हैं प्रेडिक्टेड वाले क्वेश्चंस या चैप्टर्स या कोई भी सीन या एक्ट, तब नहीं लिखते प्रेज में, तब तो 1-2 बच्चे लिखेंगे. जब नहीं आता तब देखो कि आपने बताया था नहीं आया, थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया करो. हम भी मेहनत करते हैं, उसको थोड़ा अप्रिशिएट करना भी सीखो. तो प्रॉस में, शॉर्ट स्टोरीज में वही सेम मैं आता है. तो गर्ल हु कैन का तो मैंने आपको ड्रामेटिक वर्जन भी दिया था, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ड्रामेटिक वर्जन भी, अगर आपको अभी तक भी ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली मेरी वीडियो देखने के बाद जरूर आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत मतलब अच्छे वे में आपके सामने प्रेजेंट किया था. वैसे तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी, और ये तो 100% प्रेडिक्टेड में था इसे. और क्वेश्चंस भी उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से पूछे गए. वेयर वाज एड्रा बॉर्न, हु वर हर 2 फेवरेट पीपल, पता ही आपको, नाना अम्मा. तो बस ये सारे आपको लिखने हैं. नाना एंड एड्रास मदर, मामी जिसको वो बुलाती है मामी, और उसका नाम भी लिख सकते हैं. क्लूज इन नानास बिहेवियर डेट. अपने क्रैश कोर्स में नए क्वेश्चंस ये एज इट इज हमने डिस्कस किए हुए हैं, लिखे हैं स्टूडेंट्स ने. तो यही होता है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है. नो पेडेस्ट्रियन भी पूरा फुल फ्लेश्ड पता था कि आ सकता है इस बार के लिए. इन विच ईयर 2053 एडीओ हो गया. व्हाट डिड लियोनार्ड मीड मोस्ट डियरली लव टू डू, कि वॉक करना है उसको, इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि 3 लाइंस का है तो आपने थोड़ा अच्छे से पॉइंट्स लिख के उसको एक्सप्लेन करना है. पॉइंट में कभी भी लिटरेचर में 1 2 3 नहीं कह रहे हो, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली, इस तरह से. 3 responses from Mead are viewed with suspicion by the police car. क्या क्वेश्चंस उसके पूछे गए और उसने क्या क्या उनके आंसर में कहा. मैरिड नहीं है, ऑक्यूपेशन नहीं है, उसको प्रोफेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं. वेयर इज बी टेकन टू एंड ऑफ द स्टोरी, कहाँ ले गए उसको, साइकेट्रिक सेंटर में. सो नाउ अगला भी पोएट्री भी सेम हमारा जो मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ वही सेम है. कलेक्शन ऑफ इससे भी व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, 100% में बोला ही था मैंने आपको, ये वाला आ ही सकता है. 3 इमेजेस फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड के आपने देने हैं. ग्रेट ट्री को किससे कंपेयर किया और 2 वेज उसके कंपैरिजन के अप्रोप्रिएट है. ये तो आप बहुत अच्छे से आंसर्स लिख सकते हैं. देखिए अब 3 मार्क में है तो 2 मार्क्स में आया हुआ है. इस तरह से इजी वर्ड में आपको क्वेश्चंस बना के दिए गए. जैसे 4 है तो 4 लाइंस में है, ताकि आपके ज्यादा मार्क्स कटेंगे नहीं. एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन के 2 मार्क्स हो गए. व्हाट रिस्पेक्ट ऑफ द पोएम अपील्स टू यू, 1 मार्क हो गया. गिव 1 रीजन, तो 1 मार्क हो गया. तो इसमें पेपर में सेंडम लाने की भी चांसेस हैं अगर आपने अच्छे से लिटरेचर को गो थ्रू किया है. और लास्ट आ गया द पावर ऑफ म्यूजिक, ये भी मैंने प्रेडिक्टेड में बोला था. तो कोई भी एक चीज भी नहीं है जो प्रेडिक्टेड से बाहर आई हो. उसके इमेजेस को कैसे बताया, एनी 3 सच इमेजेस, तो बहुत अच्छे से पोएट्री में बहुत सारी ह्यूमरस सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं आपको समझाने के लिए. तो वही सब आपने दिखाना है. सिग्निफिकेंस क्या है, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स. तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड ही थे, कोई भी अनएक्सपेक्टेड नहीं आया. तो एक्ट 3 सीन 1 एंड एक्ट 5 सीन 3.
और 2 रोमन्स वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज, सब कुछ मतलब एज इट इज आया है। अब वो है कि ट्रस्ट आप कितना करते हो, ट्रस्ट किया है तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैंने आपको पहले भी बताया है, आज ही रात से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, 20th से ही मैथ्स का। आई नो यू हैव हिंदी पेपर on 26 and after that on 2nd March you have your maths paper। तो उसके लिए टाइम बहुत कम है, 8 क्लासेस शेड्यूल करने के लिए आई हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम ऑल्सो फ्रॉम टुडे नाइट ओनली। So please, if you are willing to take that, then go ahead. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel। अगर अभी तक भी नहीं किया है, पेपर खत्म होने के बाद क्या करोगे? फिर बाद में कहते हैं कि हमें अब मिला, हमें अब विश्वास हुआ, तब चिड़िया चुग गई खेत। अब हिंदी के लिए भी प्रिडिक्टेड चैप्टर्स बनाए हुए हैं, उसमें से आइडिया ले लो। ऐसे के लिए भी बनाए हैं, बट ऐसे के लिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ऐसे आपको पता है निबंध लेखन एक मुश्किल चीज है, जिसमें से आ जाए तो आ जाए। इंग्लिश में आ गया पूरा टॉपिक, मेरे बताए हुए प्रिडिक्टेड उसमें से आ गया, बट हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने बहुत कम टॉपिक दिए हैं। फिर भी आप उतना तो करो, फिर जो आएगा उसके अंदर उसको डाल देंगे। मैंने क्या देखा, मैंने उसके अंदर वही देखा, डाल दो स्टोरी। थैंक यू।